God bless everybody. I'm Caleb. So today, meditating, the Spirit of God told me to teach that important thing that people doesn't know about deliverance. कि मैं आज लोगों को बताऊं डिलीवरेंस के बारे में, जो लोगों को पता नहीं है, आजादी, छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं. I was one of that Christian too, that always used to think that maybe I have a demon in my life, maybe I have a curses in my life. I was the one of the Christian that always used to think like that. मैं एक ऐसा क्रिश्चियन था, मुझे लगता था कि मेरे अंदर शायद डीमंस है, दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे अंदर शायद इविल स्पिरिट्स है, बुरी आत्माएं हैं. मैं ये सोचता था. So I did not the complete knowledge about deliverance. But today, by the grace of God, what God have given me grace to understand, I will try to make you understand so that you all will be completely free from today. मेरे पास कंप्लीट पूरी नॉलेज नहीं थी कि कैसे डिलीवर्ड हो सकते हैं, पर खुदा की कृपा से आज मेरे पास वो नॉलेज है. मैं कैसे डिलीवर्ड हुआ और मैं आपको वो चीजों के बारे में बताऊंगा. आमीन. I'm going to teach you about what actually brings deliverance in your life and what is actually a deliverance and what is not a deliverance. आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली रियल में डिलीवरेंस होती क्या है और क्या नहीं होती. इसके बारे में हम आज बात करेंगे. There are few things if you do as a child of God, you will be completely delivered. कुछ ऐसी चीजें हैं, हम खुदा के बच्चे होने के नाते, खुदा के दास दासी होने के नाते कुछ ऐसी हमें चीजें फॉलो करनी तो हमें आजादी दे सकती है. God is a God of principle and orders. That's why we call a kingdom of God. We don't say a things of God or we don't say the house of God, but we say the kingdom of, meaning every kingdom have a principle. जो हमारा खुदा है वो प्रिंसिपल का खुदा है, इसलिए हम उसे किंगडम, स्वर्ग राज्य के मतलब कहा जाता है. Honor bring deliverance. जो आदर, जो डिलीवरेंस, जो हमारे छुटकारे का के लिए, हमारी आजादी के लिए है. As Evangeline, as prophetess Suman is finding Proverbs 3 verse 9 in Hindi, let me read it in English. Honor the Lord from your wealth and from the first fruit of all your crops. Honor the Lord with thy substance and the first fruit of all thine increase. हम निकालेंगे नीति वचन, उसका 3 अध्याय, उसका 9 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना. Let us read 1 Timothy chapter 5 verse. हम सब निकालेंगे तीमुथियुस की पत्री 17 में लिखा है, तुम प्राचीन अच्छे प्रबंध करते हैं. Yes. विषय करने वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं. हालेलुया. Amen. So it says, servant of God, ever among you deserve a double honor. First, we're going to read a couple verses, and I'm going to revelate those things. मैं कुछ वचन and उसके बाद मैं टीचिंग में जाता हूँ. So 1 Timothy 5 it says, honor widows who are widows indeed. 1 तिमुथी उसका 5वां अध्याय, उसमें 3 में लिखा है, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर. हालेलुया. आमेन. Ephesians chapter 6 verse 2 says, honor your father and mother. एफिशियन की पत्री हम उसका 6 अध्याय 2 में लिखा है, अपने माता और पिता का आदर कर. यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है. आमीन. And Romans chapter 13 verse 1 says, let every person be subject to governing authorities, for that authority except from God, and those that exist have been instituted by God. आमीन. रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय पहला वचन में लिखा है, हर एक व्यक्ति शासक की अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकारी है वे परमेश्वर के ठहराया हुआ है. आमीन. हालेलुया. So we have seen honoring God. हमने पढ़ा है कि कैसे खुदा को आदर देना है. His servants, honoring his servants. खुदा के दासों को, खुदा की दासी को कैसे हमने आदर देना है, हमने ये पढ़ा है. Honoring the widows. हमने कैसे जो
विडोज है, जिनके विधवा है, उनको कैसे, स्त्रियां, हमें उनको कैसे आदर देना है. And the loss, honoring the parents and the loss of the land. कि हमने अपने माता पिता का कैसे आदर करना है. Amen, hallelujah. Yeah, and honoring the law, the authority of the land, the big people of the land, big people of the people of land. हम जगह के, हम जो अथॉरिटीज हैं, जो बड़े बड़े, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो बड़े बड़े हमारे हमसे, जैसे पीएम मोदी है, वो हम उनके अंडर है, तो हमने कैसे उनके लॉस है, हमने उनको फॉलो करना है. Amen. And so when you honor God, God will give you the harvest. When you honor God, God will give you harvest. उन्नति देता है. जब खुदा की हम आदर करते हैं तो खुदा हमें उन्नति देता है, हमें हार्वेस्ट देता है. Amen. Honoring his servant give you the spiritual covering. When you honor a man and a woman of God, it gives you the spiritual covering. जब हम खुदा के दास और दासी की आदर करते, उनका ऑनर करते, तो वो हमारी एक स्पिरिचुअली आत्मिक कवरेज बन जाता है, जो हमारी प्रोटेक्शन करती है, जो हमारे लिए प्रेयर्स करते हैं. आमीन, हालेलुया. And when you honor, when you respect the widows, when you don't criticize, when you don't look down upon them, but when you support them, when you speak for them, when you help the widows, God himself will fight for you. जब हम विधवाएं स्त्रियों की हेल्प करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय हमें उन्हें सपोर्ट करते हैं, हमें उन्हें उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, तो हम खुदा का ऑनर करते हैं. Amen. Amen. One verse we read about honoring the parents. So when you honor the parents, you prolong your life. You make your life long. Your age will be long. जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो बाइबल में लिखा हमारी उम्र लंबी हो जाती है. हमें एक वरदान या एक गिफ्ट मिला है खुदा की ओर से, सिर्फ अपने माता पिता की इज्जत करने से, आदर करने से हमें लंबी उम्र का वरदान देता है. Amen. And you honor the law of the country. जो संविधान होता है कंट्री का, when you honor the law of the country and you peace with your country. जब हम ऑनर करते हैं अपने कंट्री के लॉस को, संविधान को, रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो हमें हमारे अंदर पीस फील होती है, हमें शांति मिलती है, हमें. आमीन. Bible says that what you sow, that's what you reap. So when you sow the dishonor, you will reap same in your life. बाइबल, खुदा के वचन में लिखा है, जो तुम बीजते हो वही काटोगे. अगर तुमने अच्छा बीजा है तो तुम अच्छा ही काटोगे, अगर तुमने बुरा बीजा है तो तुम बुरा काटोगे. Amen. Hallelujah. So in Bible there was a man named Absalom that slipped. क्या किया कि ये जो अब्सलोम एक दाऊद का बेटा था, वो थर्ड बेटा. So he slept with one of that father's girlfriend. फादर का एक नौकर से लिटिल बिट बड़ा, जिसके साथ किंग सोने भी जाता है. दो काइंड ऑफ नौकर और दो काइंड ऑफ concubines से वो सोकर उसका पिता को डिसऑनर किया. So when Absalom dishonored his father, his death was very miserable. खुदा के दास बोल रहे हैं कि जब हम बाइबल में दाऊद की पत्नी थी और उसका जो बेटा था, उसकी पत्नी की मेड के साथ जब सोया था, ऐसे करने से उसने अपने बाप का, दाऊद का डिसऑनर मतलब अनादर किया, उसे बुरा लगा. तो बाइबल लिखा कि जब उसने ये काम किया तो इसके बदले में उसको निराशा मिली, डेथ मिली, उसको मौत मिली. Amen. So there is a man named Ham, same Ham, Japheth, Ham. So one of the man named Ham, the son of Noah, he dishonored his father by not covering his nakedness, but exposing his nakedness, telling other people that my father is naked, telling other people that Noah is naked. By telling that, he become cursed. The Ham become cursed. खुदा के दास बोल रहे हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते, हाम जो नूहा का बेटा था, जब उसने अपने पिता को नंगा देखा, बाइबल कहती है उसने उसको ढकने के बजाय उसने लोगों के बताया उसको, तो इसी कारण उस पे कर्स आया, उस पे शराप आया. हालेलुया. You must understand one thing is whenever God let you see the face of your father, either your physical father or your spiritual father, if he's really spiritual man, when among every other people, when God let you see the weakness of your spiritual father, then or his physical father, then God is trusting you
that you are the next person that is going to carry the mantle of your father. जब हम अपने स्पिरिचुअल फादर या फिर हमारे बायोलॉजिकल फादर जिन्होंने हमें जन्म दिया है, अगर हम उनकी कोई वीकनेस को देख लेते हैं और हमें खुदा हमें उसी स्टेज से वही वाली चीज से हमें देता है वो. So हालेलुया. when God let you see a weakness, that is the test for you. Either you are going to be cursed or either you are going to be blessed. Because when you see the weakness and if you started talking against it, for example, Miriam and Aaron begin to talk about their spiritual father against the spiritual father Moses, and the leprosy hit them. So it is an opportunity for you to cover the nakedness of your father and receive a blessing, or expose your father and receive the curse in your life. जब हम अपने स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता या फिर हमारे बायोलॉजिकल पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, अगर हम उनकी वीकनेस को देख लेते हैं तो जहाँ तो हमें खुदा कर्स देता है, तो जहाँ फिर हमें कोई शराप मिलता है उनकी जगह जहाँ कोई डिजीज आ जाता है. जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया अभी उसका मोसेस का, जब मोसेस को उसकी बहन मरियम ने देखा तो उसको खुदा ने कोढ़ लेप्रेसी हो गई थी. आमीन. और हम पे डिपेंड करता है कि हमने वीकनेस को, उनकी बातें नहीं करनी. हर खुदा के दास और हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स में अगर कोई वीकनेस, तो हमें उसकी बातें नहीं करनी, उसको कवर करना है. क्योंकि अगर हम कवर करते चीजों को तो ही हम ब्लेसिंग लेते हैं, नहीं तो हम कर्स में जाते हैं. Every time when you open certain kind of curse in your life, either it will affect 3 generations or the 7 generations. Each time when you open any curse in your life by doing any mistake, those kind of foolish mistake when you do, you either open the curse up to your 3rd generation or up to the 7th generation. And here the Ham open the curse. जब हम कर्स, शराब ओपन करते हैं अपनी जिंदगियों में, तो ये जो शराब है हमारी 3rd जनरेशन, तीसरी जनरेशन या 7th जनरेशन को इफेक्ट करते हैं, उन पे आते हैं. जैसे अभी हमने नोहा के बारे में पता कि हाम ने जो किया, तो उसकी 7th जनरेशन को वो भोगना पड़ा, वो सब कुछ, वो शराब. हालेलुया. Ham had an opportunity to cover his nakedness, but he ended up telling his other sons about the father's nakedness. He started mocking against it, and other sons covered the father nakedness and they get blessing. But Ham, because he exposed his father, because he start talking against his father, he bring the curse upon his life. हाँ, जो नूहा का बेटा था, उसे अपने पिता की वीकनेस को कवर करना चाहिए था, जो वो नंगापन था उसका ढकना चाहिए था, बल्कि उसने उसके बात की, अपने दूसरे भाइयों को उसके बारे में बताया, और वही उसने अपने ऊपर बात करने के जरा वीकनेस को अपने कवर करने के बजाय उसने बातें की और उसने अपने ऊपर श्राप लिए. हालेलुया. Let me read Proverbs chapter 30 verse 11 and 12. There is a generation that curse their father and do not respect their mothers. They think they are pure in their eyes and yet not cleansed in their feet. अब हम खोलेंगे नीति वचन उसका 30 अध्याय का 11वां में. उसमें लिखा है, ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शराप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते. ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया. आमीन. हालेलुया. If you are following any spiritual man, any influential people, they used to have a spiritual father. अगर आप किसी भी आत्मिक लोगों को देख लो या कोई इन्फ्लुएंस है जिनका बहुत बड़ा दुनिया में, तो उनके हमेशा उनके कोई ना कोई उनका स्पिरिचुअल फादर जरूर होता है. हालेलुया. That spiritual father break every curses in their life without them knowing it. और वही आपका स्पिरिचुअल फादर आपका हर कर्स को, हर श्राप को ब्रेक करता, आपको पता भी नहीं होता. आमेन. And they don't know it, and the curse of that spiritual portals of bad dreams, spiritual portals of confusion, not understanding the word of God, spiritual portals of all kind of the curse that comes from their forefathers. Without knowing it, they are free from it because of the grace that is upon their spiritual father. हमारे कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं, स्पिरिचुअल आत्मिक कुछ डोर्स हैं जो ओपन हो गए हैं, और जो आप कह सकते हो कोई कंफ्यूजन का है, मिसअंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट है, जो हमारे फोर फादर से चलती है, जो हमारे दादा परदादाओं से चलती आ रही, वो चीजें अगर हमें फॉलो कर रही हैं, तो अगर हमारे पास स्पिरिचुअल फादर है तो हमें पता भी नहीं होता हम कब इन चीजों से आजाद हो जाते हैं. हालेलुया. For example, Prophet Ankur Nirula went to submit under Prophet TB Joshua. So what Prophet TB Joshua did is he break the curse that is hindering him to see God, that is hindering him to see angels, that is hindering him
to hear God. So everything that is happening in your life, either you don't see angels, either you don't understand the word of God, these are all the manifestation of the curse. इंडिया में एक बहुत बड़े अपोस्टल है अपोस्टल अंकुन उर्ला जी, उनके स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट टीबी जोशुआ हैं। तो जब वो उनके पास गए, उन्होंने अपने आप को सबमिट किया, तो उनके जितने कर्सेस थे उनके सब ब्रेक हुए। तभी आज उनकी मिनिस्ट्री, अभी उनकी मिनिस्ट्री में जो कुछ हो रहा है वो उनके स्पिरिचुअल फादर की वजह से, क्योंकि उनकी सेम ग्रेस उनके ऊपर आई है। आज वो एंजल्स उनके जरिए देख रहे हैं। और वैसे भी वही बात हमसे भी कह रहे हैं कि अगर खुदा के वचन में ध्यान नहीं दे पा रहे, हम एंजल्स नहीं देख पा रहे, हम मेडिटेट नहीं कर रहे, ये एक मैनिफेस्टेशन है हमारी कर्सेस की। तो इसको ब्रेक करना है हमने। आमेन। So what happens is, if somebody say to you that, oh, don't follow the spiritual father, who is going to be disbenefited is you, not those people who is saying it, but who is going to be disadvantaged is you. कि अगर आपको कोई कहे कि तुमने अपने स्पिरिचुअल फादर को नहीं फॉलो करना, कहाँ लिखा है बाइबल में स्पिरिचुअल फादर बनाओ, अगर आप स्पिरिचुअल फादर बनाते हो तो इसमें आप ही का ही फायदा है, किसी और का नहीं। आपको बता रहा उसका कोई फायदा नहीं, बट आप ही का ही बेनिफिट है। हालेलुया। So the curse opened through Adam need to be broken by Jesus. In the same way, the curse that is opened by your forefathers, the witches, the portals, some people have a suicidal spirit in their house, that every people in every people's their house, in their family tribe, somebody have to do suicide, either through drugs or either by hanging. Why? Because in their forefathers that spirit of suicide have opened. जैसे आदम से शुरू हुआ, आदम के जरिए कर्सेस आए हमारी जिंदगी में, और जीसस क्राइस्ट ने उन सारे कर्सेस को खत्म किया, फिनिश किया, डिस्ट्रॉय किया। सेम हमारे घर में, हमारे फोर फादर्स में हमेशा कर्सेस होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर किसी ना किसी घर पे दुष्ट आत्मा हो, सुसाइडल, जो आत्मा हत्या करते हैं, वो दुष्ट आत्माएं होती हैं किसी ना किसी घर पे, जहाँ किसी ने हैंग किया होता अपने आप से, जहाँ कुछ चीजें खाई होती जिससे वो आप सुसाइड करते हैं। तो ये सारी कर्सेस हमें डिस्ट्रॉय करने हैं। हम For somebody telling you, don't follow certain man of God, don't sow seed to some higher grace, actually this benefiting you. Because, for example, Donald Trump can say that, oh, this sowing tithes is a rubbish. Why are you sowing the tithes? Because he's already rich, right? But for us to be prosperous, for us to break the power of all the curses of the poverty, we need to sow tithes, because the blessing he has is our prayer point. That Lord make me rich, but he don't need to pray that make me rich. He's already rich. Amen. कोई कहे कि अपने स्पिरिचुअल फादर को नहीं बनाना, उनको फॉलो नहीं करना, उन्हें टाइट नहीं देना, उन्हें ऑफरिंग नहीं करनी, तो उनका बेनिफिट नहीं है। जो आपको बोल रहे हैं वो हमारा बेनिफिट है। अगर आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहे कि टाइट देना बेकार है, तो वो उनके लिए फायदा नहीं है, बट हमें पता है हमें टाइट देना बहुत जरूरी, ताकि हमारी पॉवर्टी की स्पिरिट को हम कैंसिल कर सके, हमें डिस्कनेक्ट हम कर सके, हम अपने श्रापों को डिस्कनेक्ट कर सके। हालेलुया। Number one thing is how to be delivered is through sacrifice. When you see in 1 King, Elijah, a man of God, went to a widow house in the time of famine, COVID time, it's like a lockdown time when people doesn't have anything, but the man of God is going and saying that the last meal you have, give it to me. जब हम राजाओं की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि इलाइशा प्रॉफिट भविष्यद्वक्ता है जो एक विधवा के पास जाता है। उसके वो टाइम होता जब आप कह सकते हो कोविड का टाइम, जब कुछ भी नहीं था, तो वो टाइम वो गया एक विधवा के पास गया, तो उसने उस विधवा को कहा कि जो तेरे को लास्ट मील है, तेरे पास खाना बचा हुआ, तो वो तू मुझे दे। आमेन। One of the way to be delivered from the problem, from the situation, from the spirits, from the curses is through sacrifice. जब हम बलिदान चढ़ाते हैं, ऑफरिंग्स देते हैं, तो हम छुटकारा पाते हैं अपनी कर्से से, अपनी बीमारियों से, हर वो चीजें जो हमारे बंधन, जो हमारे पीछा कर रही हैं। आमेन। हालेलुया। She obeyed the man of God what he was saying. What happened was, for 3 years, the famine lasted 3 years, and she was always having food. The food never finished. Whatever the last meal she had, every time whenever she go, she can see that right there. अलीशा जब भी वहां पे गया, उसने मांगा, तो उसके बाद उसने उस औरत ने वो दिया, वो चाहिए, उसके बाद वो कभी खाली नहीं रही, बाइबल कहती है उसमें। So next thing for us to be delivered fully is we need to have knowledge.
हमें फुली डिलीवर, हमें फुली छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले हमारे पास नॉलेज, हमारे पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 11 verse 9 says, the righteous, the Christians, the people that believe in Lord Jesus will deliver by knowledge. Proverbs 11 verse 9 में क्या लिखा है कि नीति वचन और हितोपदेश whatever. भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। आमेन। ज्ञान के द्वारा बचती है। So many times what happens is some Christian are followers. Some Christian, if you are, let me tell you something. If you are a 2-month Christian, you already believe Jesus for 2 months, and still you have not filled with the Holy Spirit and speak in tongues, and still when man of God pray and you cast out demon and you are like, I will not go, then one thing you have to know is you don't have knowledge. Yeah, many Christians are very excited to go around, fire conference, but they don't want to acquire the knowledge that they need to have, because righteous shall deliver by knowledge. If you don't have a knowledge, the devil will keep on coming back. अगर हम ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में जाएं जहां पे सिर्फ फायर होता और हमें ज्ञान ना हो, तो इसका मतलब, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है हम ज्ञान से ही बचाए जाते हैं, तो हमारी बहुत जरूरी हमें ज्ञान हो खुदा का। Biggest mistake the deliverance ministry are doing is they don't know where the problem come from, and they don't care to know where that spirit come from, why spirit come in people's life. They don't care to know. They don't have a prophetic grace, so they don't locate. They don't know what to teach them. They are teaching around. They don't have a revelation grace, so they don't know what to teach them. So they are just casting out the devil, and they think that is a deliverance. That is very wrong. That is not a deliverance at all. जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करते हैं, जो छुटकारे की मिनिस्ट्री करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वो दुष्ट आत्मा आई कहाँ से, उसका कॉज रूट क्या है वो आने का। वो बिना ज्ञान के ये सब चीजें करते हैं और वो चीजें वापस आती हैं उनके पास। Many times what happen is some people are equipped in the anointing. Some people are equipped in the anointing, but they don't equip in the spirituality. Spirituality means who see in the spirit where the demon come from, what is the root cause. Who see in the spirit are spiritual people, but anointed people receive the impartation from some man of God or receive the impartation from online, from different man of God. This is the principle. They follow the principle, they receive the anointing, and they do fire, and then the devil is manifesting, but they don't have a spirituality. They don't know how to meditate. They don't know how to locate the spirit. They don't know which spirit is actually affecting them. So what happens is, after they go from their church, after they go from that place, the devil will come back to them, because the root cause is still there in the people's life. वो आत्मिक नहीं होता है, वो ओनली अभिषिक्त होता है। तो सब अभिषिक्त आत्मिक नहीं होता है, एंड आत्मिकता में फोकस नहीं करता है। आत्मिकता में नॉलेज चाहिए, मेडिटेशन चाहिए और दुआ करना चाहिए। दे नीड टू स्पेंड, वो उसने खुद ही पर्सनल टाइम परमेश्वर से स्पेंड करके, प्रिंसिपल फॉलो करके, राइट नॉलेज फॉलो करके, राइट प्रोफेट और प्रोफेटिक ग्रेस का फॉलो करके वो ने स्पिरिचुअल बन सकता और वो ने स्पिरिट में देख सकता। परंतु बहुत सारे लोग डिसीव होता है कि उसके जीवन में एनवाइंटिंग आता है, फायर करता है, डीमन मैनिफेस्ट होता है, वो सोचता है कि यही मेरा डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है। एंड क्या हो रहा है कि दे आर रॉबिंग द क्रिश्चियंस लाइफ, बिकॉज they are robbing the Christian time. Christians are wasting their time because they are thinking that they are getting deliverance, and that is the manifestation of devil. It is not a full deliverance. क्रिश्चियन लोग, उनकी आत्मिक चोरी हो रही, नुकसान हो रहा, वो फुली डिलीवर्ड नहीं हो रहे, क्योंकि दुष्ट आत्मा वापस उनके पास आ जाती है। स्पिरिचुअल रॉबरी क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्रिश्चियन के जीवन में आत्मिक चोरी, आत्मिक रॉबरी हो रहा है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत क्रिश्चियन लोग होता है उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। Almost everybody that is in the group, whoever following me, many people that already been prophesied to. I prophesy to them, I pray them, I impart them. Many people see angels. Many people already begin to hear God. वो ने ऑलरेडी परमेश्वर का आवाज सुन रहा है, उसका गवाही उसका जीवन में हो रहा है। बहुत सारे लोग ने प्रभु का डीप रेवलेशन भी प्रचार कर रहा है, आपने देखता है। But some people are wasting the Christian time, thinking and Christians are deceived. They think that since the devil are casting out, and devil are saying, "Oh, I will not go." Oh, this is the spiritual ministry. It's not spiritual. It's anointed, but it's not spiritual. Acknowledgement and recognize. Acknowledgement होता है, acknowledge होगी पहचान करनी और recognize करना, किसी चीज को recognize करना कि हाँ ये सही है और गलत है। Israel didn't recognize Moses that he was the one sent to set them free by God. प्रेरितों के काम 7:25 में लिखा है, उसने सोचा कि उनके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उनके हाथों से
उनके द्वारा करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। आमेन। The devil doesn't want you to recognize. For example, one false teachers who doesn't cast out the devil, doesn't heal the sick, doesn't have any history of seeing the angels. Those kind of people are opposing tongues. Oh, speaking in tongues is a gibberish. All following, millions of people are following. Why? Because devil want people not to recognize the right people, right man of God. Devil want to deceive them, blind them to see the wrong people as the right people. सैटन, शैतान लोगों को गुमराह करता है, उनकी आंखों में पट्टी बांधता कि वो देख ना पाए, वो रिकॉग्नाइज ना करें कि कौन सही है और कौन गलत है, ताकि उनको लगता कि जो गैर भाषा बोलते हैं वो शैतान की ओर से हैं। कुछ लोग ये समझते हैं, वो अगेंस्ट जाते हैं खुदा के। The real deliverance is acknowledgement. Here, as in the book of Acts, it says that people should acknowledge Moses as a deliverer of the whole Israelites, but they didn't recognize. That's why all Israelites didn't make up to the Canaan. Only the Caleb and Joshua made it to Canaan. Why? Because they failed to recognize that Moses is the one we need to follow. Moses is the one we need to listen to. They didn't know it. When you recognize, when you acknowledge right thing, then you will able to attract the spiritual thing. For example, if you don't acknowledge the angelic thing or anointing or the things of God, if you don't आपने नहीं पहचानता है कि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह इस तरीके है, आपने उसको एक्नॉलेज नहीं करता है, तो क्या होता है कि आपको जीवन में आप खुद ही वो एंजेलिक रैम से वंचित होता है, खुद ही आप वो अभिषेक से वंचित होता है, खुद ही आप परमेश्वर का आवाज से वंचित होता है, खुद ही परमेश्वर का चीज। सो दे either the angels or either the devil doesn't just visit people until he finds something in them. स्वर्गदूत या फिर डीमन या दुष्ट आत्माएं तब तक हमें विजिट नहीं करती जब तक हम वो हमारे अंदर देख ना ले है क्या हमारे अंदर। आमेन। So when devil started giving you problem, instead of you saying devil out, you have to know is what is causing that devil to come in my life, what is causing the devil to follow me, what is causing it. जब हमारे जीवन में हमारी लाइफ में कुछ चीजें होने लगती हैं तो हमें लगता है डीमन दुष्ट आत्मा आ गई हमारे अंदर, तो हमें ये नहीं पता होता कि ये कारण क्या है हमारे अंदर दुष्ट आत्मा आने का, हमें क्यों प्रॉब्लम दे रही, क्यों पीड़ा दे रही है हमें दुष्ट आत्मा, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। आमेन। So and angels doesn't follow for no reason also. Angels always follow. स्वर्गदूत every time आपको वैसे ही फॉलो नहीं करता। अगर आपको एंजेलिक विजिटेशन होना है तो आपके जीवन में कुछ असाइनमेंट होना चाहिए, कुछ इंपोर्टेंट बात होना चाहिए, कुछ इंपोर्टेंट चीज होना चाहिए। The Gabriel visit Mary because the Mary supposed to give birth to Lord Jesus Christ. Gabriel एंजल ने मैरियम को विजिट किया कि मैरियम ने प्रभु यीशु को जन्म देने जा रहे मनोआ को वाइफ को एंजल ने विजिट किया। क्यों विजिट किया? क्योंकि एक सैमसन पैदा होने वाला था और जो सैमसन के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा प्रयोग करने वाला था कि ये सैमसन ने जो भी इजराइल का विरोधी है वो उसको नष्ट करने वाला था, वो से फाइट करने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने मनोआ का वाइफ को विजिट किया कि सैमसन के बारे में समाचार देने के लिए। Devil come after the power life because he have a revelation. So the devil also doesn't just come in your life because of no reason, and all angels also doesn't come visit you for no reason because you just pray in the closet. You need to have something, either the big assignment, you need to know your assignment. आपके जीवन में आपने असाइनमेंट जानना है और वो असाइनमेंट की तरफ आप बढ़ रहा है, कुछ चीज होना चाहिए, then only। हमने खुदा के वचन में लिखा कि पॉल के पीछे दुष्ट आत्मा आती थी, उसे पीड़ा देती थी, उसको पता था उसके पास बहुत बड़ी रेवलेशन है। तो दुष्ट आत्मा या स्वर्गदूत ऐसे हमारे पीछे नहीं आते, हमारे अंदर देखते हैं अगर हमारी कितनी बड़ी हमारी असाइनमेंट है, हमारे अंदर क्या है, कितनी बड़ी रेवलेशन हमारे पास है, इसलिए हम वो हमारा पीछा करते हैं। आमेन। Jesus was fasting and praying, and Jesus was going to be a mighty, the savior of whole world. That's why when Jesus was fasting, the devil visited. दुष्ट आत्मा ने खुद जीसस क्राइस्ट को विजिट किया, उसको पता था वो परमेश्वर है, इस करके उसने उसको अटेम्प्ट किया। The Bible clearly says that when devil go away, he will be looking another opportunity to come back. बाइबल में खुदा के वचन में लिखा कि जब वो गया तो उस डेविल ने, शैतान ने दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी देखी ताकि वो दोबारा आ सके।
Amen. Yes. So simply because you always get free from the devil doesn't mean that devil will not come back. इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका एक बारी छुटकारा हो गया शैतान से तो शैतान आपको दोबारा फॉलो नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा. Confessing the sins of your fathers in prayer, your forefathers in prayer, all the sins that your forefather committed, confessing it. अपने फोरफादर जो हमारे दादा परदादाओं ने जो गलतियां की अपने उनकी गुनाहों की माफी मांगनी, हमने कन्फेस करना. Amen. You have to ask that God, what are the curses that my forefathers have opened so that I can fight with that curses. और आपने खुदा से प्रेयर करनी है, रिक्वेस्ट करनी कि हमें जो हमारे दादा परदादाओं ने जो कर्स से जो शराब खोले हुए हमें उनके बारे में बताओ ताकि हम उसको डिफीट कर सके, हम उनको हरा सके उन चीजों को. Amen. Any demon that you don't win and you don't fight, your children fight the same demon. आपको ये बात ध्यान से रखनी कि जिस डीमन से आप नहीं लड़ते वो आपके बच्चों से लड़ता है. Amen. So for example, the Abraham lied to the king saying that she is my sister. The Isaac also lied to the king that she is my sister. Isaac's son Jacob become more dangerous liar. So curses that you open, that you transfer to your family. जब अब्राहिम ने जब वो राजा के पास हो गया अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ, तो उसने बोला कि ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है. तो सेम आइजक के साथ भी ऐसा हुआ. जब वो आइजक राजा के पास गया तो उसने भी ये कन्फेस नहीं किया, ये कबूल नहीं किया कि ये मेरी पत्नी है. उसने कहा ये मेरी बहन है. और आपको पता जब यकूब का वंश आया तो यकूब सबसे बड़ा वो झूठा था. The word salvation is in the Greek word is sozo. In the Hebrew is a plural word, salvations. But in English there is only used word salvation. So simply because you get a salvation of your soul to heaven doesn't mean that you are free from everything, every curses. जो साल्वेशन है, जो उद्धार है जीसस क्राइस्ट के द्वारा आई है हमारे पास, तो जो ग्रीक में साल्वेशन का मतलब है सीजो. तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें साल्वेशन उद्धार मिल गया है हमारी सोल में, तो हम बाकी चीजों से भी आजाद हो चुके हैं. Amen. Simply because we believe in Lord Jesus Christ, not everything will be okay. We still need to fight the curses that our forefathers have opened. सिंपली ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता मान लिया तो अब हमारे पास कोई कष्ट नहीं होगा, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, हमें कोई कर्सेस नहीं आएंगे. जो हमारे फोरफादर्स ने ओपन किए हुए हमें उनको अब लड़ना है, उनसे अब उनको खत्म करना है. Amen. Luke chapter 21 verse 19 says, so in your patience possesses ye your soul. लूका की पत्री उसका 21 अध्याय 19 में लिखा है तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगी. Amen. What devil doesn't want or devil doesn't let you have is the patience. Don't be panic when God begin to show you. You begin to see your grandmother. If she was a witches, she come in your dream saying that, oh, I'm holding your baby so that you will not have a baby. Oh, I'm holding your finance so that you will not prosper. So those kind of spirits started coming to you, right? In the dream. It says, सहनशीलता. Now you need to be patient and fight with it. जो शैतान है, जो डेविल है, वो ये नहीं चाहता कि हमारे अंदर पेशेंस हो. जब हमसे खुदा हमें बात करे, हमें दिखाए सपनों में, ड्रीम्स में हमारे फोर फादर्स के बारे में. अगर हमारी ग्रैंड मदर उसने कुछ होल्ड किया है तभी हमारा बेबी नहीं हो रहा. अगर उसने हमारी फाइनेंस को होल्ड हुआ तभी हम पुअर है, हम रिच नहीं हो पा रहे. तो खुदा हमसे बात जब करता है तो हमें पैनिक नहीं होना, एकदम घबराना नहीं है. The pran, the soul means mind, will and emotion. Man, ichha or bhavana. Pran is like soul. So what happened is when you begin to see, because you pray, God, I want to fight with the curse that is blocking my baby. Lord, I want to fight with the curse that is blocking my finance. When you started praying that, God begin to show you in the dream what to fight for. And after you begin to see, you come and many people call me, oh, Prophet, मैंने आपने जो बोला वो से prayer किया. Now I see the demons coming in the fighting. Now you need to fight. Now you need to fight with the demon, because that's why don't be disturbed in your soul. आपका प्राण में patient. That's why you need to have a patience in your soul, because God begin to show you the thing. Now you need to fight with it. When you don't fight with it, your children will fight the same thing, and they will suffer in the same way that you are suffering. Soul का मतलब होता है प्राण. हमारे प्राण में क्या था? Mind, will and emotions. और
जब हम दुआ करते हैं खुदा से, हमें बताओ हमारे कर्सेस के बारे में, हम जो हमारे फोर फादर्स ने खोले हुए हैं, तो खुदा हमें जब दिखाता है तो डीमंस हमारे हम पे फाइट बैक करते हैं। तो हमें उस पर पैनिक नहीं होना, हमें खुदा के दास को फोन करके ये नहीं कहना, हमें पता लग गया, उन्होंने हमें टीचिंग दी है, कि हमें पैनिक नहीं होना, हमें सहनशीलता बना के रखनी है, इससे हमें लड़ना उसके खिलाफ। आमीन। जो चीजों ने हमें होल्ड किया, जो चीजों ने हमारी ब्लेसिंग्स को होल्ड किया है, उसके लिए। आमीन। In your soul there is a mind, right? So as long as your mind is not changed, as long as your mind is not reset, if your mind is not changed, then what happen is that devil will keep on taking advantage in your life. हमारे प्राण में, हमारी सोल में माइंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो दुष्ट आत्मा है हमारे माइंड पे अटैक करती है। Every bad thing that come in your mind is from demon, and every good thing that come in your mind is from God. हर जो बुरी आत्मा, बुरा शक, बुरा थॉट्स जो आता है वो खुदा, वो दुष्ट आत्मा की ओर से, दो डीमंस की ओर से, और जो हर कोई अच्छी बात जो आपको कंफर्ट देती है वो खुदा की ओर से, आपके दिमाग में जो आती है। So the problem with Christian people is this: when good thought come in their mind, they say, "Oh, it is from me. I will not do it." But when God is saying, "Do the business, do the good thing, do this," when God is giving you the good mind, you think, "Oh, it come from me." When you want to pray, when you feel like praying, you think it is from me. But when the bad thought comes, you have to know every good thing that come in you is from God, and every bad thing that come in your mind is from devil. जब हमारे दिमाग में कुछ अच्छी चीजें आती है तो हमें लगता है ये मेरी ओर से है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो बुरी चीजें हमारे दिमाग में आती है वो शैतान की ओर से है, और जो अच्छी चीजें हैं वो खुदा की ओर से है। अगर खुदा ने कहा हमारे दिमाग में आता है बिजनेस करो, तो इतनी समय बिजनेस करना, अगर खुदा हमें कुछ कह रहा है तो हमें सुनना, वो हमारी ओर से नहीं, वो खुदा की ओर से है। आमीन। And there is a saying in Hindi, people say that khali dimag is a shaitan ka ghar. In the same way, in Hindi they says that the mind that doesn't have any knowledge, mind the house of the devil. So that's why your mind need to be filled every day with the right revelation, with the right word of God. हिंदी में हम कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा माइंड, हमारा दिमाग खुदा की रेवलेशन से भरा हो। आमीन। Satan can access all the gifts of the spirit, because demonstrate all the gift of the spirit. Satan also do touch and people fall down. Satan also do that. Satan also prophesy. Satan also do every gift of, but only two things Satan doesn't do is truth and holiness. शैतान हर चीज पे एक्सेस कर सकता है, वो हील कर सकता है, डिलीवर कर सकता है लोगों को, बट वो दो चीजें जो नहीं कर सकता, सबसे पहले ट्रूथ, सच, और होलीनेस। Life of truth, very truth, and life of holiness, in order for devil not to use you. अगर हमारा जीवन पवित्रताई वाला है, अगर हमारा जीवन ट्रुथ, सच्चाई का है, तो डीमन, डेविल कभी भी हम पे वार नहीं कर सकता। आमीन। Now you have to understand this thing is certain truth that seems like truth and it is not from God is not truth. कुछ ऐसे सच जो दिखने में लगते हैं पर वो खुदा की ओर से नहीं होते। आमीन। Let us read Romans chapter 12 verse 1 and रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1 से, इसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। Amen. So you have to keep your life pure, the holy, and also you have to renew your mind. Right? Renew your mind. Read verse 2 again. 2 इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। So आपका चाल कब परिवर्तन होता है? जब आपका मन परिवर्तन होता है। So don't try to change your attitude without changing your mind. आपको अपना एटीट्यूड वो चेंज करना नहीं है जब तक आप अपना माइंड चेंज नहीं करते। किसी का विषय I feel kind of sleepy and I feel like there is a current in my spirit. कस्तो करेन्ट ला जस्तो फिल भयो कि सर, कस्तो गाह्रो भएर आयो कि जब पुरा सबै कस्तो फायर वरिपरि आगो जस्तो भइरहेको महसुस भइरहेछ मलाई। गाह्रो भएर
आई प्रे फॉर यू, मैंने आपके लिए प्रेयर किया, एंड देन आपके जीवन में वो आग की आवश्यकता, क्योंकि मैंने क्या देख रहा हूँ कि स्पिरिट आपने परमेश्वर को दुआ कर रहा था एंड बोल रहा था कि प्रभु मेरे को अभिषेक से भर दे, और जो भी डिमोन मेरे पास आता है वो डिमोन को वो अभिषेक से मैं दूर भगाने सकने पाता हूँ। इसलिए परमेश्वर का आग ने, आपका अभिषेक ने, भारी अभिषेक ने आपको भर दिया है। इसलिए मैंने शुरू में हाथ उठाने लगाया और प्रेयर किया, क्योंकि स्पिरिट ऑफ गॉड ने मेरे को बोला कि आपका दुआ वो था, इसलिए आपको नहीं बताया परंतु आपके लिए मेरे दुआ कर दिया। क्योंकि प्रोफेसी क्या है कि आपका दुआ का उत्तर है। सो ईच टाइम इफ आई प्रे फॉर समबडी एंड इफ आई प्रोफेसाई टू समबडी, आई नो मेरे को खुदा ने मेरे को स्पिरिट में बोला है कि इसने ये दुआ किया है। दैट्स व्हाई आई प्रे फॉर देम स्पेसिफिक थिंग। एंड पीपल दैट डजंट प्रे, किसी ने मेरे को आज प्रोफेसी मिलने पाए, ये मिलने पाए, और वो विषय में, कुछ विषय में एक सीरियसली दुआ नहीं कर रहा है, तो उसको कुछ भी परमेश्वर ने मेरे को नहीं बोलता है। दैट्स हाउ इट वर्क, बिकॉज द प्रोफेसी answer of your prayer. It is better how to maintain fire is not talking with anybody. किसी से बात नहीं करना, आप किसी से बात नहीं करना, रूम में बंद करना, आपको दुआ करना और अन्य भाषा बोलना और अभिषेक आना देना। So one thing you have to know is this: when anointing increase, then your आपका आत्मिक weight increase होना शुरू करता है। तब आपको स्पिरिट लाइट होता है ना, तो आपका आउटर बॉडी एक्सपीरियंस होता है। तो आपने हेवन एंजल देखा है, जो आपका दुआ, मैंने स्पिरिट में क्या देख रहा हूँ कि आपका वो दुआ था कि मैं स्पिरिट में कुछ देखने पाऊँ, एंजेलिक रैम देखने पाऊँ, स्पिरिचुअली में प्रोफेटिक बनने पाऊँ। इसलिए परमेश्वर ने आपको वो अभिषेक इम्पार्ट मैंने किया हो, तो वो इम्पार्टेशन ने आपको वो कर रहा है। इसलिए डोंट से ओ आई फील फायर, कैसे क्या करना है। नाउ दैट इज द, हमारा जीवन में वो नेचुरल होना चाहिए। टू फील फायर इज शुड बी नेचुरल, टू फील द एनवाइंटिंग शुड बी नेचुरल। हमारा जीवन में फायर महसूस होना, अभिषेक महसूस होना, वो नेचुरल होना पड़ता था। परंतु हमारा जीवन में क्या होता है, जब अभिषेक फायर फील होता है, हमने लगता है कि ये नेचुरल नहीं है, परंतु के जीवन में वी नीड टू फील दैट इज नेचुरल। एंड व्हेन वी नॉट फील द फायर, व्हेन वी नॉट फील दैट, एनवाइंटिंग फील नहीं होता है, अभिषेक फील नहीं होता है, हमने क्या सोचना है कि ये नेचुरल नहीं है, क्यों मेरे को फील नहीं हो रहा है, क्यों मैं अभिषेक में नहीं पढ़ रहा हूँ, क्यों मेरे जीवन में ये नहीं। एंड देन यू हैव टू प्रे फॉर दैट, दैट्स हाउ इट वर्क। सो एनी विषय, अदर पीपल के विषय। प्रॉफिट, मुझे ये कि आपने एक बारी क्लास में बोला था कि हमें 12 बजे मिडनाइट में कौन सी प्रेयर करनी चाहिए, सुबह कौन सी करनी है। तो मुझे दैट इज द थिंग। आज मैंने टीचिंग किया ना, सो ये टीचिंग मैंने क्या बोल रहा हूँ कि पवित्र बाइबल ने बताता है कि पवित्र आत्मा ने क्या दुआ करना हम नहीं जानता, पवित्र आत्मा ने सिखाता है। तो क्या करता है कि नाउ व्हेन पीपल सी इन द ड्रीम, जब सपना में कौन समस्या मेरे को आ रहा है, कभी कभी उसको हराया हुआ देखता है सपना, वो क्या है कि इवेंजलिकल ग्रेस, प्रीचिंग का ग्रेस शैतान ने लेके आपको कभी कभी कपड़े हराया हुआ देखता है, सपना में आपने ढूंढ रहा होता है, क्या हो रहा है, किसी ने आपको स्पिरिचुअल गारमेंट चोरी किया ताकि आपको जीवन में नग्नता, स्पिरिचुअली नेकेड बना रहा है। और किसी को जीवन में क्या ड्रीम में वो लॉस्ट हो रहा है, और मैं किधर हूँ, उसको क्या बना रहा है, डेस्टिनी को भी स्टील कर सकता है किसी को, ताकि उसको जानता है कि ये ईयर में मैं कुछ स्पिरिचुअली कुछ लेवल में होना था, परंतु मैं नहीं हूँ। क्या हो रहा है, क्योंकि उसको डेस्टिनी स्टील कर रहा है। सो परमेश्वर ने आपको ड्रीम में देख रहा है, सिंपली बिकॉज लोग ने ड्रीम को लाइट लेना शुरू करता है। लोग ने दे टेक द ड्रीम वेरी लाइटली, दे डोंट सी एज अ मैसेज दैट परमेश्वर ने दे रहा है, स्पिरिचुअली परमेश्वर ने दे रहा है, वो मैसेज दे रहा है, वो नहीं जानता है। तो व्हाटएवर गॉड शो यू इन द ड्रीम, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग in your note, so that in the midnight you have to fight against it. You are like, for example, dream में आपको जूते हराया, रखत कलाबाशान था, लॉर्ड आपको वचन ने बोला है कि मेरे पाँव में आपने अधिकार दिया है शैतान के सर में कुचलने के लिए, शैतान के सर में मैंने क्रश करने के लिए। You have to do the warfare prayer in midnight. If you see witches, शैतान ने सता रहा है और बोक्सी ने सता रहा है, you know, witches, if it is causing you problem, वो ने आपको जीवन में प्रॉब्लम दे रहा है, तो क्या करना है, आपने बोलना है कि मिडनाइट में दुआ करना, क्योंकि वो जिसका पावर मिडनाइट में एक्टिव होता है ना, वो टाइम रेखा था ले बे बेबियांचोस रोंटे रीबा बाबा करके आपने मिडनाइट में वो एक प्रेयर रिक्वेस्ट को एटलीस्ट 5 मिनट देकर और 3 मिनट देकर आत्मा में दुआ करना। ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा ऐसा है ना, ओ परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ, नहीं करना वैसा। आप जाना, डायरेक्टली जाना, खुदा मैं आपको चरण में आता हूँ, आपके सिंहासन के सामने आता हूँ और मैं दुआ करता हूँ, मेरा सब विषय आपके पास लेके आता हूँ और आपका आत्मा मेरे साथ है और आपका आत्मा से मिलकर
और आपका स्वर्गदूतों को साथ मिलकर मैं ये जो भी प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा हूँ। एंड देन एक एक प्रॉब्लम को पढ़ना एंड वचन आपने नहीं जानती है तो वो ड्रीम मेरे को भेजना, मैं वचन भेजता हूँ, कौन वचन वो से जोड़कर आपने दुआ करना। सो वचन डालना, एक दो तीन वचन डालना उसके साथ साथ एंड वो वचन क्लेम करके वो विषय के विरोध में काटना शुरू करना। आपने काटना ड्रीम्स बोली से, आपका दुआ से काटना शुरू करना, रेखा छाया। एंड कभी कभी क्या होता है अन्य भाषा से आपने जो सोच में आता है अन्य भाषा से बोल देना उसको। फॉर एग्जाम्पल यू से आउट इन द नेम ऑफ जीसस बोलना है तो रबा शाखा रेबे करना, अन्य भाषा से बोलना, सो दैट डेविल विल कंफ्यूज, डेविल विल मोर स्केयर। अपना माइंड में जो बोलना है आत्मा बोलना, सो दैट यू गेट अ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। आत्मा का अनुवाद, अन्य भाषा का अनुवाद भी आना शुरू करता है। जो भी माइंड में आता है अन्य भाषा में बोलना शुरू करता है, आपके अन्य भाषा और अन्य भाषा आपका आना शुरू करता है। What I said is that is the foundation. Thank you, man of God. Thank you. You're welcome. Anybody have any question? जैसे जैसे आपने सिखाया एग्जैक्टली सही है, क्योंकि मैं सेम उसी तरह से ड्रीम देखती हूँ। और जैसे जैसे आपने कहा कि मैं जैसे उठती हूँ, मतलब जैसे मैं अपने ड्रीम से उठ रही हूँ तो देख रही हूँ कि हाँ मुझे जैसे आपने बताया था मैं उसके लिए लड़ रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम वो ड्रीम चेंज हो रहा है मेरा। हालेलुया। मतलब वो पहले जैसे एक कुत्ता भौंकते हुए काटने के लिए भागता था और मैं भागती थी, लेकिन जैसे मेरी आंख खुली मैंने क्या किया, मैंने जोर लगाया, मतलब पूरी अंदर से तो डर है, सपने में अंदर से डर लग रहा है, लेकिन मैंने उसे मतलब डांटना, मतलब एक उठते ही जैसे उस सपने को मैंने कैंसिल किया और अन्य भाषा में बोला, और बहुत ही मतलब गुस्से से मतलब मैंने कहा कि नहीं, यीशु के नाम में निकले रबा, मतलब अन्य भाषा के द्वारा उसे जैसे मानो उसे मैंने डांटती रही। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, सेकंड वो ड्रीम एक और ड्रीम देखा कि कुत्ता भौंक तो रहा है लेकिन मेरे पास नहीं आ रहा है, दूर से भौंक रहा है। That's deep. So next time आपने मिनिस्टर करके हुए देखती है ड्रीम में, एंड नेक्स्ट टाइम जब आती है आपने बोलती है ओके हाथ उठाओ, आपके लिए मैं इम्पार्टेशन। फादर इन द नेम ऑफ जीसस राबा सोटोरो बोरियान, उसको सिर से पांव तक का अभिषेक में इस घड़ी घोषणा करता हूँ और रिलीज करता हूँ। Mighty name of Jesus Christ. Leba soto roborian tala baba baba yan. Antarabo kola handarebe. Samahandarian darebe bethona kala handariba shatha behandarian daraba. Kohandaraba. सबैलाई जय मसी। म चाहिँ हजुरलाई फलो गर्दै थिएँ, हाम्रो पिटर सर हुनुहुन्छ उहाँको थ्रुबाट, एन्ड आज फर्स्ट टाइम तपाईँको जुममा बस्दैछु। आइ एम फिलिङ भेरी राम्रो लागिरहेको छ। अनि यो ड्रिमको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो भने मैले एउटा जबको लागि एप्लाई गरेको थिएँ कि हजुर गरेको थिएँ, अनि त्यहाँ चाहिँ अलमोस्ट लगभग 90% चाहिँ स्योर भइसकेको थियो कि जबको लागि। अनि लास्ट मोमेन्टमा आएर चाहिँ के भने त्यो जब क्यान्सल भयो होइन, क्यान्सल भन्नाले क्लाइन्टले होल्ड गर्यो भनेर मेल आयो मलाई। अनि त्यो टाइममा चाहिँ एकदमै ब्रोक फिल भइरहेको थियो क्या मलाई चाहिँ, किनभने मैले धेरै प्लान बनाइसकेको थिएँ, अब यस्तो गर्छु त्यहाँबाट आएको पैसाले यस्तो गर्छु भनेर। अनि त्यो समय भयो, मैले राति प्रार्थना पनि गरेँ। अनि त्यो दिन राति चाहिँ मैले कस्तो सपना देखेँ भने मैले त्यो जबको लागि अप्लाई गरिरहेको थिएँ, म सँगसँगै 3-4 जना अरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। लास्टमा सेलेक्ट चाहिँ भएन, अनि फेरि कहाँबाट चाहिँ एकजना केटी आएर होइन तिमी यो जबमा भएन, तिमी अर्को जबमा मैले तिमीलाई सेलेक्ट गर्छु भन्नुभयो कि। अनिखेरि उहाँले त्यस्तो भन्दाखेरि म खुसी भएँ, ओके भने। तर अनि जब म त्यो जबभित्र इन्टर गरेँ नि, अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो एकदमै डरलाग्दो त्यो डेमोनिक टाइपको होइन त्यस्तो टाइपको काम के। अनि मलाई त्यस्तो डर लाग्यो क्या त्यति बेला। अनि ठ्याक्कै त्यो के पछि बिउजेपछि ठ्याक्कै के काम थियो भनेर मलाई त्यो याद चाहिँ भएन होइन, तर त्यो जति सम्झिँदा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो थियो क्या। अनिखेरि त्यो केटी चाहिँ हाँस्यो क्या, मैले यो कामको लागि धेरैजनालाई फोकस त गराएको थिएँ, तिमी चाहिँ फस्यो यसमा भनेर क्या। त्यो परमेश्वरले हो त्यो भनेको, मैले परमेश्वरले तपाईँलाई अवेयर गर्नुभयो होइन, तपाईँलाई वार्निङ दिनुभयो ताकि अर्को पालि तपाईँले काम पाउनुभन्दा अगाडि प्रार्थना गरेर अनि काम पाएँ भने खुसी। तपाईँलाई डेस्परेट हुनुहुन्थ्यो नि त, जुनै काम भेट्यो भने नि अलिक राम्रो भेट्यो भने पाइहाल्छु, म गइहाल्छु, पक्रिहाल्छु भनेर सोच्नु भएको थियो। तर अहिले परमेश्वरले के गर्नु हुँदैन, आत्तिनु हुँदैन। तपाईँले चाहिँ प्रार्थना गरेर एकदम राम्ररी सोचेर मात्रै, सोच विचार गरेर मात्रै काम चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, नभए तपाईँलाई शैतानले पनि बाटो खोलिदिरहेको छ। जुन ठाउँमा गएर जीवन तहस नहस हुन्छ भन्ने प्रभुले तपाईँलाई त्यसरी देखाउनु भएको वार्निङ। सो त्यही भएर तपाईँ डेस्परेट हुन्छ नि, काम खोजेको राम्रो हुन्छ, यो काम भेटेँ म पक्रिहाल्छु जाइहाल्छु होइन। तर स्पिरिटलाई सुन्नुहोस्, तपाईँको आत्मालाई सुन्नुहोस्, अन्त त्यहाँदेखि तपाईँ एकदम प्रोफेटिक व्यक्ति हो।
तपाईँ प्रोफेटिक व्यक्ति हो। मलाई थाहा छैन तपाईँलाई कहिले देखेको छैन, तर मैले स्पिरिटमा के मैले स्पिरिट परमेश्वरको आत्मा देखाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ मान्छेलाई मिनिस्टर गरिरहेको र तपाईँले मिनिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू आशिषित भइरहेको र धेरैजना मान्छेहरू पवित्र आत्माले भरिएर र बाबा गरिरहेको मैले त्यस्तो अनि धेरैजना मानिसहरूको रिभाइभल आइरहेको तपाईँको जीवनबाट त्यो सेवाकाई मैले देखेको छु। परमेश्वरको आत्माले भर्दै हुन्छ। प्रार्थना गर्नुहोस्। धेरै धेरै खुसी लाग्यो। जुममा पहिलोपल्ट ग्रुपमा मैले नोभेम्बर 4 तारिकको फारम भरेर मेरो ट्रायलमा मैले पास भएको हो जबको लागि। नोभेम्बर 4 तारिकबाट लिएर आजसम्म किन रोकिएको छ मलाई पनि थाहा छैन। अन्त जबको कुनै पनि फोन पनि आएको छैन र कुनै पनि जवाफ पनि दिएका छैनन्। नोभेम्बर तारिकबाट आज 26-27 कति भइसक्यो, आजसम्म जवाफ पनि आएन। अस्ति बेलुकी मैले प्रार्थना गरेर सुतेको थिएँ कि अनि मैले दर्शनमा चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि एकदम बादलमा घोडा दौडिँदै आउँदाखेरि त्यो घोडाको पाउबाट नि पुरै आगोको झिल्काहरू निस्किएको देखेँ कि मैले। एकदम तेज के त्यो आगोको जो लाइटको रोशनी एकदम सेतो के तकिलो बाटो त्यस्तो छ। अनि घोडा दौडिएको यति स्पिडमा घोडा दौडिँदाखेरि पुरा आगोको झिल्का निस्कियो के खुट्टाबाट, घोडाको खुट्टाबाट। अनि मैले हेरेको गरेँ। अनि त्यहाँ धेरै मान्छेलाई बोलाएर हेरौँ परमेश्वर आउनुको बादलमा यसरी सवार गर्नुभयो भन्दै देखाउँथ्यो अरे। कसैले मलाई त बकवास भन्छन् अरे, कोही के भन्छन् अरे। अनि माथि हेरेको छु अनि त्यस्तो देखेर अन्तिममा त्यस्तै भयो। अनि म त्यही सपनाहरू देखेँ। अनि मैले के देखेँ होला मेरो, अनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट पनि त्यस्तो जब गर्छु अनि त्यो जबमा पनि चाहन्छु जस्तो इन्ट्रेस्ट पनि लाग्दैन। अनि त्यहाँबाट जवाफ पनि आएन कि मलाई। फेरि पनि म अब घरबाट यताउता भन्दाखेरि इन्तजार गरेको नि 1 महिना हुन लागिसक्यो, सही त्यो कामबाट नि आएन। यता दर्शन यस्तो देख्छु अनि प्रार्थना गर्छु। प्रार्थना गर्दाखेरि एकदम आनन्द र शान्ति। अनि तपाईँले बोलाउनलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जबको लागि जति प्रार्थना गर्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरले जहिले पनि आनन्द शान्तिले भर्नुभएको अनि डिप दर्शन दिनुभएको। यस कारणले काम गरेको राम्रो हो। तर जबसम्म तपाईँले आफ्नो बोलावटलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँको जति नै काममा तपाईँ जानुभयो भने परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो बोलावटलाई सिरियसली लियोस् भनेर घरिघरि परमेश्वरले चाहिँ कोही बेला तपाईँलाई त्यो प्रार्थनाको समय चाहिँ काममा नखर्चियोस् भनेर परमेश्वर तयार गर्नको लागि त्यसो गर्नुहुन्छ। तर मलाई थाहा छैन, तर तपाईँलाई परमेश्वरले एउटा रेस्टुरेन्टमा, मलाई थाहा छैन तपाईँले रेस्टुरेन्टमा अप्लाई गर्दै हुन्थ्यो कि हुन्थेन, तर रेस्टुरेन्ट परमेश्वर तपाईँलाई काम खोलिदिनुहुन्छ। तपाईँले त्यसलाई रिसिभ गर्नुहोस्। रेस्टुरेन्टमा तपाईँले काम अपर्च्युनिटी तपाईँको लागि ढोका खोलेको तपाईँ देख्नुहुन्छ, त्यसलाई रिसिभ गर्नुहोस्, त्यसलाई लिनुहोस् र परमेश्वरले त्यही ठाउँबाट तपाईँलाई सुसमाचार या प्रचार गर्नुको लागि तपाईँको जीवनबाट परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा। आदरणीय प्रोफेटलाई जय मसीह। सर्वप्रथम
म तपाईसँग पहिलो पटक बोल्न गइरहेको आज र परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीको प्रमुखलाई पनि आशिष देखाउन् र विशेष गरी म धेरै कुरा बोल्न चाहन्न तर मेरो जीवनमा चाहिँ अब कसरी परमेश्वरको काम सुरु हुँदैछ त्यो म आन्तरिक हृदयबाट बुझ्न चाहन्छु हजुरले त्यसको विषय खोलिदिनुहुन्छ भन्ने आशा तपाईको परमेश्वरको बोलावट छ तपाईको जीवनमा परमेश्वरको डिप तर तपाईको जीवन भएको छ भने अननेसेसरी ब्याटल तपाईले ल्याउनु भएको छ त्यो तपाईको कभरिङ छैन त्यो अननेसेसरी ब्याटल जब तपाईले अरूलाई सेवाकाई दिनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो आत्माहरूले चाहिँ तपाईलाई नै उल्टै सताइरहेको छ अब तपाईलाई म किन आत्माहरूले हो भनेर तपाईलाई थाहा र कुनै कुरा मिल्दैन अहिले बुझ्नुभयो नि अननेसेसरी तपाईँले चाहिँ त्यो आत्मा तपाईँले चाहिँ अरूको लागि तपाईँले सेवाकाई गरेको राम्रो प्रार्थना गरेको राम्रो तर तपाईँ कसैको समिसनमा हुनुपर्छ कसैलाई तपाईँले रिसिभ गर्नुपर्छ स्पिरिचुअल फादरको रूपमा र उसले तपाईँलाई कभर गरेपछि र उसको कभरिङमा बसेपछि उसले तपाईँलाई मेन्टर गर्न थालेपछि के हुन्छ तपाईँ आत्मामा बढ्दै बढ्दै जानुहुन्छ ओके तपाईँलाई सेवाकाई गर्दा पनि तपाईँको जीवनमा त्यो आत्माले तपाईँसँग झगडा गर्न आउँदैन त्यस कारणले कभरिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यस्तो छ तर तपाईँको जीवन ठुलो बोलावट छ र परमेश्वर तपाईँको ठुलो काम तपाईँले प्रार्थना गर्दा मानिसहरू निको पनि भइरहेको छ र मानिसहरू कारा पनि भइरहेको छ तपाईँको कभर हुनु सिक्ने हृदय हुनुपर्छ एकदम सिक्ने हृदय जब चाहिँ सिक्ने हृदय हुँदा यो बाइबल पढ्नुहोस् आज यति बजी उठेर यसरी प्रार्थना गर्नुहोस् यसरी गर्नुहोस् भन्दाखेरि आफ्नै प्रकारले होइन तर तपाईँले चाहिँ सिकाएको अनुसार तपाईँले आफ्नो जीवनमा पालन गर्नु भने के हुन्छ तपाईँको आत्मामा बढ्नु तपाईँलाई सजिलो हुन्छ यस्तो हुन्छ आमेन हालेलुया हालेलुया ये अभी दो महीना से ऊपर हो गया मैं रात को एक दिन प्रार्थना डेली तो प्रार्थना चलता है प्रार्थना करता है मैं 12 से 12-20-15 तक मतलब आधा घंटा प्रार्थना करके सोता है तो सोया तो रात को सपना देखा कि बहुत लोग मेरे दरवाजा का पीछे है बहुत लोग मतलब बातचीत कर रहे हैं ऐसा बातचीत करके तो बाद में एक उधर कोई बैठा हुआ था तो वो लोग बोला इधर क्यों बैठा है तुम इधर से निकलो तुम इधर बैठो आज का बाद कभी भी तुम इधर मत आओ और इस जगह में कभी भी तुम नजर मत आओ तो बाद में शायद इसका बाद में दरवाजा बहुत 3 बार टक 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 नॉक किया तो हम बोला इतना रात को किसने नॉक किया मेरा दरवाजा तो बाद में संजय नहीं था उस दिन तो हम बोला संजय आया तो कॉल करता है इसका बाद में नॉक करता है हम बोला एनी टाइम उसी टाइम में मेरे को याद है कि हाँ प्रोफेट पापा ने बोला था भजन सीखने तो कभी भी स्वर्गदूत आता है तो 3 बार नॉक करता है इसका बाद ज्यादा नॉक नहीं करता है तो बाद में मैंने उसी टाइम में आँख खोल के मैंने मोबाइल चेक किया 1:10 हुआ था तो उसी दिन से मेरे को बहुत मतलब महसूस हुआ कि कूल हर टाइम में कूल ऐसा महसूस होता है और ऐसा बहुत लोगों को मेरे को देखते हैं मतलब कोई बदन दर्द होता है सिर दर्द होता है बुखार होता है देखते मतलब वो फ्री हो जाता है डीप प्लीज गाइस अंडरस्टैंड दिस बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल है इधर बट वो नहीं जानता है कि वो आत्मिक ही है एंड प्रॉब्लम की बात क्या है कि आप अनात्मिक कुछ लोग अनात्मिक चर्च में जाता है जिसने ओनली फायर करता है परंतु जब अपने ड्रीम का बारे में बोलता है एंजल का बारे में बोलते हैं वो फायर वालों ने नहीं जानता परमेश्वर का इच्छा क्या है कि ये जनरेशन में सब लोग प्रोफेटिक होने पाए परमेश्वर का वचन बोलता है कि दूध पीने वाला बालक होता है ना उसका मुंह से भी अगमबाड़ियां करने दर्शन दिखाने सपना दिखाने वाला परमेश्वर का इच्छा है इसलिए क्या चल रहा है कि सब लोग को परमेश्वर ने स्पिरिचुअल बना रहा है प्रोफेटिक जनरेशन परमेश्वर ने बना रहा है परंतु लोग जीवन में किसी ने नहीं आपको इनकरेज कर रहा है आप प्रोफेटिक में बढ़ रही है आपके पास ऐसा चल रहा है और आप ऐसा इस तरीका का सेवकाई के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है यानी कभी कभी क्या होता है एशियन कंट्री में जितना आत्मा में क्यों परमेश्वर ने इनकाउंटर नहीं दो स्टिल वो नहीं सोचता है कि मैं स्टिल बेबी हूँ स्टिल मैं तो बेबी हूँ अब तो मेरे को तो कैसे परमेश्वर ने यूज कर सकता नहीं मैं तो अभी भी बेबी हूँ सोचता है एंड चर्च में जाता है जो उन्हें प्रचार कर रहा है ना उसका प्रचार से भी आप उच्च रेवलेशन जान के बैठ रहा है एंड आप भी जानते कि ये रेवलेशन तो बोल रहा है इससे भी बढ़कर रेवलेशन परमेश्वर ने मेरे को दिखाया है सिखाया है आपको मन में लागे
परंतु अभी अब लगता है कि फिर आपने क्या सोचते, नहीं मेरे बेटा, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा एशियन कंट्री में ऐसा है कि बोल्ड नहीं है, बोल्ड और बहुत जी सॉरी, और बहुत बार मतलब संजय को भी ऐसा पेन होता है सिर में, बदन दर्द, तो तुरंत मतलब हाथ रख के उसको प्रार्थना करता है, वो गायब हो जाता है, चंगाई हो जाता है पूरे। एंड अपने जानना है कि पहला सेवा का आपके ओनली घर परिवार आउटसाइड के घर परिवार के अंदर में होता है। कैसा होता है कि घर परिवार के लोग के विषय में आपको सपना दर्शन देता है प्रभु ने, एंड देन वो पूरी होने आता है। किसी लोग ने आपको बुराई कर रहा है घर में, जो बुराई उसके जीवन में तुरंत बुराई होना शुरू करता है। किसी ने आपका अच्छा कर रहा है घर में, आप खुद ही घर में उसको अच्छा हो, तो परमेश्वर ने क्या देखा रहा है कि आपको वो घर अभिषिक्त के रूप में खड़ा किया है। अभिषिक्त के रूप में ये परमेश्वर ने डिफेंड किया है आपको कि मेरे अभिषिक्त होना, तो इसलिए परमेश्वर घर से कंफर्मेशन दे रहा होता है कि आपको जीवन में वो घर में एक डिलीवरर के रूप में, एक अभिषिक्त के रूप में परमेश्वर ने आपको रेज किया है। तो क्या करता है कि वो कंफर्मेशन लेकर बढ़ना नहीं, परंतु हम एवरी टाइम नहीं। अब किसी को मैंने बोला कि मैं प्रचार करना सिखाता हूँ, रेवलेशन कैसे बोलना सिखाता हूँ, रेवलेशन के रेवलेशन में कैसे बढ़ना सिखाता हूँ, आप वचन बोलना शुरू करो, बोलो तो नहीं है, बट मैं टाइम, मेरे को ऐसा मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ, मैं कभी नहीं वचन नहीं बोला हूँ, होता है लोग के जीवन में। सो दैट इज नॉट गुड, वी नीड टू बी बोल्ड परमेश्वर का काम करने के लिए। और परमेश्वर का दो तीन एंड क्या होता है कि मंडली में ऐसा सोचता है लोग ने कि जब आपके मंडली में 2-3 लोग आपको विश्वास करता है ना, आपने दुआ करता है, आपने सेवा कार्य देता होता है ना, कभी कभी पास्टर लोग ने आरिश करता है, ओ मंडली फुटाने वाला है आपने। ऐसा होना नहीं चाहिए, होता है ऐसा। सबके लिए मैं दुआ करता हूँ लॉर्ड, आज जो भी हमने वचन सीखा है और सुना है, और जो भी आपको आत्मा से, आपको रूह से हुआ है खुदा, वो सील्ड होने पाए आपके जीवन में। परमेश्वर आपने आपका अभिषेक, आपका इम्पार्टेशन दिया है, आपने उसका विश्वास बढ़ा दिया है, उसका अभिषेक बढ़ा दिया है, उसका ड्रीम और सब का पोर्टल ओपन हुआ है, और जो भी डिमोनिक पोर्टल सब क्लोज हुआ है। इसलिए खुदा आज के दिन से वो उसको एंजेलिक उपस्थिति में, परमेश्वर का आवाज में, परमेश्वर का आवाज सुनने में बढ़ने के लिए सहायता करो। For more spiritual teachings, like and follow Revelatory Experience on Facebook, where you can subscribe for alerts. If you are blessed and would like to bless others, please share. May God bless you.